अभी हम सेकेंड पढ़ते हैं. हाई स्पीड winds are accompanied by reduced air pressure. सी इसमें एक्टिविटी है 8.2. Crumble a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. See, you have to take one piece of paper and you have to crumble it and keep it on the mouth on a bottle and try to blow it. उसको एक बॉटल के ऊपर रख के आपको उसको ब्लो करना है, फूंक से अंदर करने की कोशिश करना है, राइट? So hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with bottles of different sizes. Challenge your friends if they can force the paper ball in by blowing it into the bottle. तो अभी हमें क्या करना है इसमें? We have to try in different types of bottle, different sizes means उसका mouth, the bottle are having is having different types of mouth. किसी का mouth छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा. तो you can try in different bottles this activity. अभी आगे क्या करना है ये देखते हैं कि what was the result in this activity. Paheli and Bujo are thinking about the following questions. Why is it difficult to force the paper ball into the bottle? बॉटल के अंदर अगर हम ब्लो करते हैं, व्हेन वी आर ब्लोइंग द पेपर बॉल इनटू द बॉटल, व्हाई इट इज डिफिकल्ट? सो कोई बता सकता है मुझे? एनीवन हैव एन आइडिया? कैन यू रिपीट दैट? बेटा आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है दीपाली आपकी मुझे. कैन यू रिपीट दैट? कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फोर्स दिस पेपर बॉल इनटू द बॉटल? Air pressure, ma'am, because the air pressure, the air wants to escape from the bottle, so that's why it is pushing out the paper ball. सी जहां पे हम यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जहां पे एयर प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे स्पीड कम होती है. These both are opposite to each other. If the air pressure is more, the speed will be high. If the air pressure is less, the speed will be fast. Okay. तो आगे इसका रिजल्ट देखेंगे. अगली एक्टिविटी देखते हैं. ब्लो द बलून. टेक 2 balloons of approximately equal size. Put a little water into the balloons. Blow up both the balloons and tie each one to a string. Hang the balloons at 8 to 10 centimeter apart on the cycle spoke on a stick. कुछ भी कर सकते हैं हम किसी भी स्ट्रिंग पे. We have to take 2 balloons and inflate both the balloons and tie on this string. Blow in the space between the balloon. What did you expect? What happens if 2 balloons are hanging on this string? What will happen? Try different ways of balloon on the balloon to see what happens. अभी इसका रिजल्ट हम बाद में देखेंगे. 3 एक्टिविटीज देखते हैं कि और क्या है. अगली है, can you blow the lift? Hold a strip of paper 20 centimeter long and 3 centimeter wide between your thumb and forefinger as shown in figure 8.5. Now blow over the paper. अभी थर्ड एक्टिविटी क्या है? You have to take one paper string. पेपर की एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी है और आपको क्या करना है? उसको ब्लो करना है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? पहली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप. बूजो थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड. नाउ दोनों का व्यूज अलग है. पहली सोच रही है कि जो स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ब्लो करेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी. और बूजो क्या कह रहा है? बूजो कहता है कि अगर व्हेन वी ब्लो द स्ट्रिप इट विल बेंड, वो बेंड हो जाएगी. ठीक है. तो अब होगा क्या ये देखते हैं. व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन दिस पेपर? Let us try to understand. The observation is activity 8.2, 3 and 4. Were the observations along the lines you thought? Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure? Yes, of course. If the wind speed is high, it will reduce the air pressure. If the wind speed is slow, okay, it will increase the air pressure.
दे बोथ आर ऑपोजिट, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, व्हेन वी ब्लो द पेपर बॉल इनटू द बॉटल, अगर हम पेपर बॉल को बॉटल के अंदर ब्लो करते हैं तो क्या होता है, जहां से हम ब्लो कर रहे हैं वहां पे क्या होगा, हम अच्छे प्रेशर से वो ब्लो कर रहे हैं, हमारी जो विंड की स्पीड होगी वो फास्ट होगी, दैट्स वाई वहां पे प्रेशर, हमारे मुंह के पास का जो प्रेशर होगा वो कम होगा, एयर प्रेशर कम होगा कंपेरेटिव टू वहां जहां पे बॉटल अंदर की तरफ, जो बॉटल के अंदर की तरफ जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, राइट। जहां से हम फूंक मार रहे हैं, जहां से हम ब्लो कर रहे हैं वहां पे एयर प्रेशर कम होगा, और जो बॉटल के अंदर वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा तेज होगा, ज्यादा होगा, राइट। तो पीछे वाला जो प्रेशर होगा बॉटल का, इट विल पुश द पेपर बॉल, वो क्या करेगा, पेपर बॉल को आपकी तरफ पुश करेगा, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्लो द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। बॉटल के अंदर अगर हम पेपर बॉल ब्लो करने की कोशिश करते हैं तो it is little difficult because of the air pressure into the bottle is high। समझ आया, समझ आया सबको? देखो मैं बताती हूँ, see, can you see this whiteboard? Yes, ma'am. देखो अगर ये बॉटल है, my drawing is not working here, so please ignore my drawing, okay, because I am drawing with mouse, okay। तो क्या है यहाँ पे, सपोज करो यहाँ एक पेपर बॉल है, ठीक है, एंड यू आर ब्लोइंग दिस, यहाँ पे आप हो, somebody is there, ठीक है, यहाँ पे कोई है, ओके। राइट, यहाँ से उसने ब्लो किया तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इट इज लो, राइट, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा, और इसके अंदर जो प्रेशर होगा बॉटल के अंदर कंपैरेटिव टू दिस प्रेशर इट विल बी हाई। क्लियर, समझ आया एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो यहाँ का जो प्रेशर होगा Yes. ये क्या होगा, Yes, इस ma'am. वाले पेपर बॉल को इट विल ट्राई टू पुश, यहाँ का जो प्रेशर होगा वो इस पेपर बॉल को पुश करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और यहाँ से हम इसको इधर पुश कर रहे हैं, राइट। तो इट विल लिटिल डिफिकल्ट टू ब्लो दिस पेपर इनटू द बॉटल। नाउ क्लियर एवरीबॉडी? व्हेन Yes, एयर ma'am. प्रेशर will be high, the wind speed will be low. If the wind speed will be high, there the air pressure will be low. Clear? इतना समझ आया Yes, सबको? ma'am. इसकी वजह से ही यहाँ पे जो बलून वाला है, देखो, Yes. when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decrease the pressure there. वहां पे हमारी जो स्पीड ज्यादा थी इसलिए वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो गया। The air pressure inside the bottle is higher than the near the mouth. और क्या हुआ, वहां पे जो एयर प्रेशर बॉटल के अंदर था वो comparative to near our mouth will be high, ठीक है। So bottle pushes the ball out, right? In activity 8.3 you saw that when you blew between the balloon they moved towards each other। यहाँ पे जो बलून को आपने टाई किया था और हैंग किया था एक स्ट्रिंग में, वहां पे क्या होगा, they both the balloon attract each other, वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। How would this happen? This could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced, और उनके बीच का जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि बलून के अंदर जो प्रेशर है दिस इज हायर, राइट, समझ आया? The pressure inside the balloon is higher comparative to between the balloon। बलून की जो बीच का जो प्रेशर होगा
वो बलून के अंदर के प्रेशर से कम होगा, इसलिए बलून के जो अंदर का जो प्रेशर होगा वो बलून को एक दूसरे की तरफ पुश करेंगे. दैट्स व्हाई दे ट्राई टू कम नियर ईच अदर, राइट. This pressure outside the balloons would then Yes, ma'am. push them towards each other. और वो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ पुश करेंगे. ठीक है. In activity 8.4, you saw that when you blew over the paper strip, it bent upwards. Again, this could happen if blowing over the paper reduce the air pressure above the strip. अगर आप क्या करते हो, पेपर स्ट्रिप के ऐसे सिंपल नीचे से ब्लो करते हो तो पेपर स्ट्रिप ऊपर जाएगी, और अगर ऊपर से ब्लो करते हो तो पेपर स्ट्रिप कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, राइट. क्योंकि जहां पे विंड की स्पीड ज्यादा होती है वहां एयर प्रेशर कम हो जाता है. ठीक है. और जहां पे एयर प्रेशर कम होता है वहां पे विंड की स्पीड ज्यादा हो जाती है. ठीक है. So we see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. Clear? Now everybody clear? इतना Yes, ये ma'am. चीज समझ में आई सबको, या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है? Okay. So let's continue. Can you imagine what would happen if high speed winds blew over the roofs of buildings? If the roof were weak, they could be lifted and blown away. If you have any such experience, share it with your friends. यहाँ पे भी यही होता है, जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो जो हल्की वाली रूफ्स होती हैं वो उड़ जाती है, और जो भारी वाली रूफ्स होती हैं वो रह जाती है, क्योंकि वहां पे भी यही होता है कि एयर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. So let us try to understand how winds are produced, how they bring rain, and how they can be destructive sometimes. You already know that when air moves, it be called wind. Air moves from the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low. जहां एयर किधर से किधर मूव करती है, where the air pressure is high. हाई प्रेशर के एयर से कहां मूव करती है, लो प्रेशर में, राइट. जहां पे भी एयर प्रेशर ज्यादा होगा वहां से विंड मूव करती है टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो. द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स. जितना एयर प्रेशर कम होगा विंड उतनी ही तेज होंगी. ठीक है. बट हाउ आर प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर? Is the difference in temperature involved? The following activities will help you to understand this. Yes, temperature also involved in this activity. ठीक है. आगे देखते हैं. Take a boiling tube, stretch a balloon tightly over the neck of the tube. आपको क्या करना है, you have to take one test tube and you have to fit one balloon over it. आपको एक बलून लेना है और उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लगा देना है. ठीक है. And keep this test tube into a boiling water, into a beaker. After some time, what would happen? क्या होगा? Balloon will inflated. बलून क्या होगा, फूल जाएगा. ठीक है. क्यों फूल जाएगा? because of vapors. अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि warm air is lighter than the cold air. जो warm air होती है वो cold air से light होती है, हल्की होती है. ओके. ये मेघा सतवारा कौन है? तो 5th का बच्चा लग रहा है मुझे. मेघ सतवारा. मेघ हमारे इधर तो नहीं है ना, हमारी क्लास में नहीं है ना मेघ? मैम वो नैन्सी है लेकिन वो अपनी मम्मी का है. ओके ओके फाइन. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. जब एयर ऊपर जाती है, ठीक है, राइज अप होती है, तो गर्म होने के बाद में इट एक्सपैंड, फैल जाती है, बहुत सारा एरिया कवर कर लेती है, राइट. बिकॉज जो वाटर वेपर्स होते हैं, सॉरी गैस पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, राइट. लिक्विड, सॉलिड और गैसेस पढ़ा है हमने. इतना तो पता है ना सबको कि लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ना होता है, निग्लिजिबल होता है, राइट.
फिर लिक्विड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मोर देन लिक्विड, मोर देन सॉलिड होता है, बट लेस देन गैसेस होता है, राइट? तो गैस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? बिल्कुल निग्लिजिबल होता है, क्योंकि गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है उनके बीच में, दैट्स व्हाई उनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. एंड व्हेन द एयर राइजेस अप, वार्म एयर राइजेस अप, it will consume, it will cover most of the space, बहुत सारा स्पेस कवर कर लेते हैं, ठीक है? समझ आया? तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हीटिंग में क्या होता है कि एयर एक्सपैंड, एयर क्या करती है? एक्सपैंड होती है हीटिंग करने से. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि बलून इन्फ्लेट हो जाता है व्हेन वी कीप दैट टेस्ट ट्यूब इनसाइड द बॉइलिंग वाटर. तो इस एक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं कि हीट सॉरी एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. अगली एक्टिविटी भी ऐसे ही है. टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑन द सेम साइज, हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ 2 एंड्स ऑफ द मेटल और वुडन स्टिक. देखो इस तरीके की एक एक्टिविटी है. Tie a piece of thread in the middle of the stick. Hold the stick by a thread as the inner balance. Put a burning candle below one of the bags as shown in figure. Observe what happened. Why is the balance of the bags disturbed? Right? इसमें भी क्या है? वही सेम कि जो भी वार्म एयर होती है वो एक्सपैंड होती है, ठीक है? गर्म होने के बाद एक्सपैंड होती है, इस वजह से वो हल्की हो जाती है. और बैलेंस, जिसके अंदर ठंडी एयर है वो भारी है और जिसके अंदर गर्म एयर है वो हल्का है. हॉट एयर बलून एक इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम. ऊपर जाता है हॉट एयर बलून, राइट? वो जो हम कैंडल्स जलाते हैं, कैंडल देखी है आप लोगों ने, जो हम दिवाली पे मोस्टली छोड़ते हैं स्काई में, उसमें भी क्या होता है? कैंडल जैसी जल रही होती है. वो इसलिए बिकॉज हॉट एयर राइजेस अप एंड कूल एयर कम डाउन, बिकॉज इट इज हैवी, दैट्स व्हाई इट कम डाउन. ठीक है? Why is the balance of bags disturbed? Does this activity indicate the warm air rises up? As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? Yes. Warm air is lighter than the cold air. That's why it rises up and cold air comes down. ठीक है? Can you now explain why smoke always rises up? Because it is heavy. Smoke क्या होता है? Heavy होता है. Oh, sorry, light होता है smoke. ठीक है? क्योंकि वो गर्म होता है. Smoke गर्म होता है. ठीक है? Also, it is important to remember that on heating, the air expands and occupies more space. और जब भी एयर ऊपर जाती है, it occupies more space, मतलब बहुत सारी जगह में फैल जाती है. See, कहीं पे भी अगर हम किसी ने स्प्रे लगाया है एक रूम में, ठीक है, दूसरी जगह पे इमीडिएटली आपको स्मेल आ जाती है. क्यों? कौन बताएगा? मैम आप रिपीट कर सकते हो, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है. मैं ये पूछ रही हूँ कि if somebody using spray in one room, in second room it can smell immediately. Why? मैम जो उसकी जो सेंट की जो स्मेल होती है उसे एयर पार्टिकल्स के साथ मूव करता है, इसलिए वो ज्यादा जगह घेर लेता है. करेक्ट. क्योंकि एयर जो होती है वो एक्सपेंडेड है पूरे ऑल ओवर अराउंड आवर सेल्फ, हमारे चारों तरफ फैली हुई है एयर. और उस एयर में जब हमारी परफ्यूम के पार्टिकल्स ऐड होते हैं तो वी कैन इजीली स्मेल एयर इन अ लिटिल टाइम. ठीक है? बहुत कम टाइम में हम बहुत जल्दी स्मेल कर सकते हैं अगर somebody using spray in near us. Okay? Also, it is important to remember that on heating, the air expands and occupies more space. When the same thing occupies more space, it's become lighter, right?
warm air is therefore lighter than the cold air. That is the reason that the smoke goes up, right? In nature, there are several situations where warm air rises at a place, the air pressure at the place is lowered. The cold air from the surroundings area rushes it into fill its space. This sets up convection in air as you learned in chapter 4. Convection हमने पढ़ा था. Convection में क्या होता था? कन्वेक्शन में क्या होता था? लैंड की जो गर्म हवा है वो ऊपर उड़ जाती और फिर सी की कोल्ड है उसकी जगह ले जाती। करेक्ट। वहां पे क्या होता है कि इसमें हम एक इक्वेटर और इसका ले सकते हैं, पोलर्स का। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो इक्वेटर्स होते हैं वहां के आसपास का जो एरिया होता है वो सबसे ज्यादा वार्म होता है, ठीक है। तो वार्म एयर्स जो होती हैं वो पोलर की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं, राइट। और जब पोलर की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं तो जो वार्म एयर का एरिया होता है, बिकॉज वार्म एयर राइजेज अप, राइट, warm air rises up, हाँ ये देखो, warm air rises up, तो क्या होता है, सपोज करो ये इक्वेटर है, ठीक है, और इधर पोलर है, पोलर रीजन है, ठीक है। अभी यहाँ की जो एयर होगी वो इस तरफ जाना स्टार्ट करेगी, बिकॉज वार्म एयर राइजेस अप, तो ये ऊपर से जाएगी। और ये जो यहाँ की जो पोलर रीजन है, यहाँ की एयर कैसी होगी, कूल होगी, कूल एयर होगी, राइट। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, और यहाँ की एयर क्या होगी, वार्म होगी, राइट। तो ये एयर यहाँ से जाना स्टार्ट करेगी और यहाँ पे एक गैप बनेगा और इस गैप को यहाँ से कूल एयर आना स्टार्ट करेगी, ठीक है, समझ आया? यस मैम। तो ये एक साइकिल है, ठीक है, ऐसा ऐसा, ये एक साइकिल है, दिस इज द साइकिल। ये एयर का जो आना जाना ये होता है ना, और इसमें क्या होता है, अनइवन हीटिंग होती है, ठीक है। मतलब वार्म एयर इधर से आती है, कूल एयर इधर से आती है, और ये साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल की वजह से ही रेनफॉल भी होता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना जानो कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अभी ये प्रोसेस समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं। Wind currents are generated due to the uneven heating on the earth. अब क्या होता है, विंड करंट जो होता है वो कैसे जनरेट होता है, अनइवन हीटिंग। अनइवन हीटिंग जो कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके की अनइवन हीटिंग होती है, इक्वेटर से पोलर, पोलर से इक्वेटर, या वार्म एरिया से कोल्ड एरिया पे और कूल एरिया से वार्म एरिया पे, जैसे कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होते हैं, ठीक है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में भी यही होता है कि दिन के टाइम में लैंड की जो भी विंड होती हैं वो कैसी होती हैं, वार्म होती हैं, और वो वार्म विंड जो वार्म एयर होती है, it move towards the ocean and ocean air is cool and it move towards the land, ठीक है। You might have learned in geography that region close to the equator get maximum heat from the sun. The air in this region get warm. The warm air rises and the cooler air from the region in the 0 to 30 degree latitude belt or either side of the equator moves in. तो जो 0 से 30 डिग्री की जो एयर होती है वो किधर मूव करती है, इक्वेटर से, सॉरी इक्वेटर की तरफ मूव करती है, क्योंकि इक्वेटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। शबनूर, व्हाट आर यू डूइंग, फ्रॉम whom you are talking? Shabnur, can you hear me? Shabnur, can you hear me?
Jia, can you hear me? Yes, ma'am. Tell me the relation between the air pressure and the wind. Speed of wind and air pressure मैम का क्या कैन यू connection रिपीट है? मैम, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। कनेक्शन क्या होता आपकी है एयर आवाज नहीं आ प्रेशर? रही। कनेक्शन क्या होता है एयर प्रेशर और स्पीड ऑफ विंड का? मैम वो जो वार्म एयर डू यू नो कि तुम क्यों नहीं बता पा रही हो? तुम्हें पता है कि तुम क्यों नहीं बता पा रही हो? बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लासरूम. Simply you are talking with someone. And Shabnur also. Yes. You are not paying attention at all in the class.